السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی آج، میں وضو دیر سے کیا ہے میں نے، لیکن الحمدللہ ویسے ٹائم پر ہوں۔ اچھا جی، تو آج انشاءاللہ ہم الحرکات الطویلہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پیچھے سے جتنی ریویژن ہو سکتی ہے وہ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا بھی تھا، آج پھر کوشش کریں گے کہ سمجھائیں انشاءاللہ، اور ایسے کرتے ہیں ٹیگنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کون کون ہمیں جوائن کر سکتا ہے۔ جناب پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، یہ کہاں سے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، وہ ٹیگنگ کا وہ دے نہیں رہا مجھے۔ چلے ٹیگنگ چھوڑ دیتے ہیں، آج ٹیگنگ کا نہیں آ رہا، کوئی فیس بک نے نئی چیز اپڈیٹ کیا تو کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ چلیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ بیٹھنا ہے بالکل، اور جب آپ آکسیجن اندر لیتے ہیں تو آپ کے لنگس جو ہیں، پھیپھڑے پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں، اور جب باہر نکالتے ہیں آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو واپس اپنی جگہ چلے جاتے ہیں۔ اور پیٹ بھی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یعنی پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، لنگس کے ساتھ ساتھ۔ تو چل ہم ایسے کرتے ہیں، آکسیجن انہیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کریں گے۔ تیسری بار۔ ٹھیک ہے، اور اپنے جو آپ کے پیٹ کے مسلز ہیں انہیں بھی فیل کریں کہ اندر باہر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو 2 ایکسرسائز آپ کو زبردستی بہت ساری ہو رہی ہیں، ایکچولی تو سارے سسٹمز انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ بہترین ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ سب سے پہلے جوائن کرتی ہیں، اولون میں سے، سابقون میں سے ہیں آپ، سبقت لے جانے والوں میں سے، الحمدللہ۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اجر سے محروم نہ رکھیں، اور آپ کو اس کا پورا پورا اجر دے۔ میری دعا ہے میرے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں اور رب کے کلام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور رب کی خاطر خالص نیت کے ساتھ، سب کے لیے میری دعا ہے کہ پاک پروردگار ان سے یہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دے، صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر دے، اور قیامت والے دن ان کو اس اجر سے محروم نہ رکھیں۔ اور علم القرآن جو ہے بہترین گروپ، کہ یہاں پہ ایسی ایسی پوسٹ، ایسے ایسے چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان کے میں اضافے، ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر یاسمین ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں سے سیرت النبی کا بھی کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو رب کے لیے کام کرتے ہیں اور رب کے بندوں کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں
अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मैं चाह रही थी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन में आप दे दूं। एक लेडी ने मुझसे कहा था कि मैंने समझा तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ज़रा तफसील से दोबारा बताएं कि ये खड़ी हरकत क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, खड़ी हरकत जो होती हैं ये हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। हरूफ मद्दा तो होते हैं ना, लेटर्स की शक्ल में होते हैं, और कितने हैं आपको पता है जो अलजौफ से अदा होते हैं। अगर आप देखें, ये अलिफ, अलिफ मद्दा, खाली अलिफ से पहले अगर हमारे पास किसी भी हर्फ पे फतहा आती है तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है। ठीक है, और अगर वाव साकिन से पहले अगर हमारे पास आती है, पेश आती है, ठीक है, दम्मा, तो ये वाव मद्दा कहलाता है। ठीक है, वाव मद्दा। ठीक है, और अगर या साकिन से पहले हमारे पास कसरा आती है तो ये या मद्दा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो खड़ी हरकत है, और ये दो दो काउंट इन्हें खींचा जाता है। ठीक है, यानी आ के लिए आवाज दो काउंट ऊपर जाएगी, आ, ठीक है, जैसे बै, और जैसे बू, तो इसके लिए आवाज दो काउंट के लिए गोल हो जाएगी, रोल करेंगे लिप्स कंप्लीटली। ठीक है, और ई के लिए आवाज दो काउंट जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जनाब हमारे पास ये तो हमारे हरूफ मद्दा हो गया। अच्छा, और अगर किसी भी लेटर पे से जबर आ रही है तो आपको पता है ना कि वो वन काउंट के लिए आवाज ऊपर जाती है, जबड़ा वन काउंट के लिए खुलता है। ठीक है, और कसरा आती है तो वन काउंट के लिए आवाज नीचे जाती है। ठीक है, और वन काउंट के लिए, और दम्मा के लिए आवाज वन काउंट के लिए गोल हो जाती है। ठीक है, वन वन काउंट। लेकिन हरूफ मद्दा क्या है, स्ट्रेचिंग लेटर्स है, और ये अपने से पहले किसी भी लेटर जैसे आपको बताया कि रिस्पेक्टिव इस पे जो हरकत होगी उसके हिसाब से आवाज को खींचा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो खड़ी हरकत हैं वो हरकत की शक्ल में आती हैं। जैसे आप देखें, उसमें हमारे पास उस्मानी जो मुसहफ है, उसमें तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको, लेकिन ये जो मजीदी कुरान होता है इसमें खड़ी हरकत इस तरह आती है ऊपर। ठीक है, और ये क्या होती है कि ये अपने से पहले मुतहरिक लेटर की आवाज को खींचती है। जैसे अगर अलिफ अलिफ सगीरा जैसे आई है तो फतह की आवाज को ये खींचेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ फतह का साइन नहीं दिया हुआ। ठीक है, कसरा के लिए आवाज दो काउंट के लिए नीचे जाएगी, और उल्टी पेश जो है ये उल्टी जेर है, ये खड़ी अलिफ है। ठीक है, और ये खड़ी जेर है, और ये उल्टी पेश है। इसके लिए आवाज ये क्या होगा कि ये अलिफ मद्दा है, और ये या मद्दा है, ये वाव मद्दा है, आवाज गोल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस्मानी मुसहफ में जैसे आप लोग के सामने लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, ये जो मैंने लिखा है ना मवाजीन हु, अगर आप देखें उल्टी पेश आपको नजर आ रही है ना, मवाजीनुहु। ठीक है, मवाजीनुहु, यानी अगर इस तरह हा के ऊपर आई या, ठीक है, हा के ऊपर आएगी तो फिर वो जब उसे साकिन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी खड़ी हरकत, और वो हा साकिन फिर मवाजीनु। ठीक है, मवाजीनु इस तरह पड़ी जाएगी, हा साकिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह एक और भी, जैसे मैं या राहू, ठीक है, या राहू, या राह, ज़ाहरीही, ज़ाहरीह। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज कुरान पाक में आपको मिलेंगे जो आप इस तरह साकिन अगर उसे करेंगे तो खड़ी हरकत खत्म हो जाएगी। अच्छा, और उस मानी मुसहफ में आप देखें कि बा के ऊपर क्या है, फतहा है, और अलिफ सगीरा जो है इस बा की आवाज को दो काउंट के लिए खींचेगी। ठीक है, और उसमें सिर्फ ये जबरी आपको मिलेगी उस्मानी मुसहफ में, उसमें खड़ी जेर या उल्टी पेश नहीं मिलेगी। जैसे ये देखिए, बा के नीचे कसरा है और उसके आगे छोटी सी या बनी हुई है। ठीक है, तो ये इसकी आवाज को दो काउंट के लिए खींचेगी। ठीक है, यानी या साकिन से पहले हमारे पास कसरा आ रही है। ठीक है, छोटी या इस तरह बनी होगी उस्मानी मुसहफ में। बा आप देख रहे हैं, बा के ऊपर हमारे पास सीधी पेश बनी हुई है, ये देसी ये क्या है, खड़ी हरकत नहीं है, ये बा यानी फतहा है, और उसके आगे अलिफ सगीरा बनी हुई है जो इसकी ये बता रही है कि इसकी आवाज को दो काउंट खींचेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर ये बा कसरा के साथ है, तो ये इस बात की वो अलामत है कि बा की आवाज को ये साकिन जो है, या साकिन से पहले कसरा आ रही है तो ये या मद्दा बन रही है, और सीधी आप देखें वो है कसरा है। ठीक है, यानी उल्टी खड़ी जेर, वो जो खड़ी जेर है वो नहीं है। ठीक है, उल्टी नहीं, खड़ी जेर जो हर्फ के नीचे होती है। ठीक है, अच्छा, और फिर बा के ऊपर सीधी पेश है और छोटी वाव बनी हुई है जो इस बात की अलामत है कि ये इसकी आवाज को दो काउंट के लिए गोल करेगी। ठीक है, तो ये जनाब इसकी एक्सप्लेनेशन थी, और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसे बाकायदा आगाज करते हैं, शुरू करते हैं।
اور जिस सिस्टर ने, मुझे नाम भूल गया है, नाम इतनी सारी सिस्टर्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ रही होती है तो नाम याद नहीं रहते मुझे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी पूछा आपकी वजह से और लोगों को भी फ़ायदा हो गया, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे मैं साथ साथ रिपीट, मैंने लास्ट टाइम इसी तरह बताया था, लेकिन थोड़ा डिटेल इसमें मैंने शामिल की है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह आप सबको। तो चले, अल हरकत तवीला, ठीक है, ब फतह अलिफ सगीरा ब। अच्छा, डन के लिए आप लोगों ने डी लिखना है और ओके के लिए के लिखना है। ब कसरा या सगीरा बी, ब दम्मा वाव सगीरा बू, ब बी बू। अच्छा, इसी तरह आपने, जैसे मैंने ये पढ़ा है ना, तो इसी तरह आपने इसके स्पेलिंग्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करनी है तो इतना टाइम नहीं है कि इसी तरह पढ़ा जाए, ठीक है। या, ये, यू, ठीक है, रो, री, रू, मा, मी, मू, ठीक है, ला, ली, लू। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। आज जो हमारा लेसन है ये तुम्हारी इसकी रिवीजन हो गई। मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ आइन तक आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। वाव फतह अलिफ सगीरा व, और आप देखें ये अलिफ सगीरा जो है थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है, कर्व है, इसमें खम है थोड़ा सा, ठीक है। वाव फतह अलिफ सगीरा व, वाव कसरा या सगीरा वी, वाव दम्मा वाव सगीरा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? व, वी, वो, टू काउंट्स के लिए, व, वी, वो, नून फतहा अलिफ सगीरा ना, नून कसरा या सगीरा नी, नून दम्मा वाव सगीरा नू, ना, नी, नू, हमजा फतहा अलिफ सगीरा आ। अच्छा, अब आ की आवाज जो है ना, आ नहीं निकलेगी, ठीक है। हमजा जो है वो है फार थ्रोट से, अक्सा अल हल्क या अक्सुल हल्क से। तो हमने क्या करना है कि हमजा के मखरज पे जाके उसको फिर खींचना है ऊपर की तरफ से, ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है। उसे क्या करेंगे, बुलंदी के साथ अदा करेंगे ताकि पता चले कि मद इसकी आवाज को खींच रहे। जैसे कैसे पढ़ेंगे, आ करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अ, ई, ऊ, अ, ई, ऊ, ठीक है। आवाज में आपको वाज़ेह फर्क लग रहा होगा, ठीक है ना, कि अलजौफ से तो ये मतलब बन रही है हमजा के साथ, लेकिन हमने अलजौफ से इसे अदा भी करना है और हमजा को अपने मखरज से अदा करना है, ठीक है। अ, ई, ऊ, है, ही, हु, दोनों लेटर हमजा एंड हा जो है वो साउंड बॉक्स के ऊपर ही है। अक्सुल हल्क कहाँ पर है, यानी साउंड बॉक्स जो है उसके ऊपर है ये मखरज, ठीक है। अच्छा, आ, आई, ऊ, हर मखरज को अपने मोड से निकालना बहुत जरूरी है। आ, आई, ऊ, आ, आई, ओ। अच्छा, और ये आइन को हमजा नहीं बनाएंगे और हमजा को आइन नहीं बनाएंगे। जब आप बहुत सख्ती पैदा कर देते हैं हमजा में तो उसे आइन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, बहुत सख्त, यानी कि परफेक्शन के चक्कर में कि हाँ यहाँ से निकले। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, जो मैंने प्रोसीजर तरीके टेक्निक्स यहाँ आप लोगों को बताई हैं कि ये टेक्निक से आइन प्रोड्यूस होगा, इस टेक्निक से हा प्रोड्यूस होगा। ये जब आप कुरान पाक पढ़ोगे तो वहाँ ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं करेंगे, बेअदबी हो जाएगी। तो जो मैं अभी सिखा रही हूँ कायदे में आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने मतलब सीख के उस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके मखारिज सुथरे खूबसूरत हो जाएंगे। जब कुरान पाक में आप लोग कदम रखेंगे, ठीक है, अम्मा पारे में, तो उस वक्त फिर आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी और ऐसा कुछ फिर आप लोग नहीं करेंगे। उससे पहले कुरान पाक को हाथ में उठाने से पहले, पढ़ने से पहले आप लोग, हाँ अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि हमारा आइन और सारे मखारिज अलिफ से या तक इसको ज़रा प्रैक्टिस कर लें ताकि जब कुरान पढ़ें तो वो ख़राब ना हो, बेअदबी ना हो, तो वो आप पहले कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। आइन फतह अलिफ सगीरा आ, आ, देखिए मोड़ से निकाला ना, अलिफ ने से खींच लिया ऊपर, आ, 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 आई, आई, आऊ,
औ, औ, ठीक है, इसे मोटा नहीं करेंगे, जबान की जड़ को नीचे रखेंगे ताकि ये लेटर्स जो है मोटे ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको मोटा कर देते हैं, लेकिन जो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई है, उस प्रैक्टिस से क्या प्रैक्टिस थी, आ या अनी या अनी या अनी या अनी या अनी, इसकी क्विक रिपीटेशन करें, या अनी बादू 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 बादू। और यहाँ पे मिडल थ्रोट जो है आपका, यहाँ आप लोगों ने हाथ रखना है, ठीक है, और यहाँ आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए कि यहीं से निकल रहा है। जबान की जड़ को नीचे रखेंगे, एपिग्लॉटिस जो है एपिग्लॉटिस को आपने क्या करना है, मुंह हिलाना है, जैसे शुरू में मैंने यानी या आ करके मैंने बताया ना। तो ये बादू नाबुदु, ये तरीके हैं। आप देखिए किसको अदा करने से आपका आइन निकल रहा है, फिर उसकी प्रैक्टिस करें और उसको बार बार रिपीटेशन से खरा सुथरा कर दें। एक ही दफा में 500 दफा पढ़ डालें, ठीक है, तो ये सुथरा हो जाएगा। अच्छा, आई औ, ठीक। तो यह हमारा लेसन था, दोबारा इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। व वी वू, व वी वू, वा नहीं बोलेंगे, इसे बारीक लेटर है, ठीक है। व वी वू, न नी नू। अच्छा, एक और ध्यान रखना है कि मद में जो है वो गुन्ने की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। न न खुले मुंह से अदा होगा, न नी नू, नी नू, ठीक है। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, इसे आइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमजा फतह अ अ ई ऊ। आई एम सो सॉरी, मंडे की सुबह समहाउ मेरा गला पता नहीं क्यों खराब होता है, बाद में फिर सही हो जाता है, लेकिन सुबह ही ये मेरे साथ मसला होता है। स्टीम ले चुकी हूँ, उसके बावजूद ये हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी, माजरत के इस तरह होता है। आ ई ऊ। अच्छा, ये आ था, और आइन कैसे अदा करेंगे, आ आई ऊ, आ ई ऊ, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं ना आप, आ आई ऊ, है ही हो, ठीक है। और हु पे जहाँ पे दम्मा होगा और आवाज खींचेंगे तो वहां पे आवाज गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी आवाज गोल होगी, और कैसे होगी, लिप्स को जब आप रोल करेंगे फ्रंट में, आउटवर्ड फॉरवर्ड पुश करके, औ या ऊ साउंड से, हाफ वे रोलिंग नहीं होगी, ठीक है, वरना ओ की आवाज आएगी फिर, ठीक है। फिर बू की बजाय बो की आवाज आएगी। और बे अगर आपने मजहूल पढ़ा और लोअर जॉ को नीचे ड्रॉप नहीं किया और जबान का सेंटर नहीं उठाया, तो बे की आवाज आएगी बजाय बी की आवाज के, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब अल हुरूफुल हिजाइयतुल मुफरदह, अलिफ ब, पढ़े मेरे साथ, शाबाश। जो पुराने हैं वो मेरे साथ रिपीट करें, और जो नए हैं वो हमारे बात करें, ठीक है। अलिफ ब त स, हवा को बाहर निकालें, स, टिप टू टिप, ठीक है। जबान की नोक और ऊपर के दो दांतों के जो एजेस हैं आपस में जब मिलेंगे, और चावल के दाने जितनी सिर्फ जबान बाहर निकलेगी, इससे ज्यादा नहीं। स, जीम, है, खो के लिए होंठ गोल नहीं होंगे, वरना क्या आवाज होगी, खो, ये आवाज होगी, ठीक है। होंठ गोल नहीं होंगे, मखरज से अदा होगा। खो, अदनुल हल्क है इसका मखरज, ठीक है। अदना अल हल्क कह ले या अदनुल हल्क कह ले, वहां से अदा होता है। और जबान की जड़ को ऊपर नरम तालू की तरफ उठाएंगे, जहां जबान की जड़ खत्म होती है वहां से अदना अल हल्क शुरू होता है, ठीक है। खो, खो, दैल। अच्छा, दो काउंट के लिए इसकी आवाज ऊपर जाएगी, है, खो, दैल, ज़ैल, रो, ज़ै, सीन, शीन, صاد ضاد طا ظا عين عين يعني عين غين فا قاف كاف لام
मीम मीम, इसका मीम, इसका इजहार जो लास्ट में आ रहा है उसका भी इजहार करना है। लैम मीम, इवन जितने लेटर हमने अदा किए हैं और उनके जितने भी जो लास्ट लेटर हैं, ठीक है, वो जरूर अदा करना जरूरी है। जहाँ हवा पे आवाज खत्म होती है उसको भी जाहिर करना जरूरी है, जहाँ पे नून है आखिर में, ठीक है, दाल है आखिर में, उन सबको हमने शो करना है, ठीक है। जैसे सीन, शीन, صاد ضاد طا ظا عين غين غين فا، ठीक है, यहाँ हवा पे खत्म हो रही है और इनके नून साकिन हमने अदा किए। कौफ, ठीक है, अलिफ, अलिफ कफा भी जो इसका हमस और खावा वाजे करने, और कौफ का भी। कौफ, कैफ, लैम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। यहाँ जितने सेशंस अभी तक हो चुके हैं उन सब की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप आए ग्रुप में ज्वाइन करें, औरों को बुलाएं, आपके लिए, हमारे लिए, और इस प्लेटफॉर्म में जो हमारे एडमिन है, मॉडरेटर्स हैं, सब के लिए जो आपके सामने ये लेकर आती हैं, उनके लिए भी बेहतरीन सदका जारिया बने, ठीक है, आप सब के लिए बने, आमीन। एक लाइन पढ़ूंगी फिर आगे चलेंगे रिवीजन के लिए। अल हुरूफुल हिजाइयतुल मुरक्कबह, ठीक है। अच्छा, मुरक्कबात ये सिंगल है, और जब दो लेटर आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब बन जाता है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे पढ़ा जाता है? इसके जो पहला लेटर है उस पे जाके कंप्लीटली उसको तमाम तसिफात के साथ अदा करके बगैर सांस तोड़े और आवाज तोड़े हम फौरन अगले लेटर पे जाएंगे, लेकिन एक मखरज दूसरे मखरज के अंदर दाखिल नहीं होगा, ठीक है। एक मखरज छोड़ेंगे अदा करने के बाद तमाम तरह कैफियत के साथ, फिर दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा लेटर उसका मखरज, ठीक है। लैम अलिफ, लैम अलिफ, ये क्या है? सिर्फ अलिफ मुफरद लेटर है, सिंगल, अकेला, अलोन, अलिफ, अलिफ, लैम अलिफ, लैम अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, ठीक है, एक छोड़ा और दूसरा भी पकड़ा, लैम अलिफ, ठीक है। देखिए मीम पे आवाज खत्म हुई और फिर उसके बाद मैंने, अच्छा ये पेजेस जो है अब आप इंशाल्लाह खुद करेंगे, सेशंस मौजूद हैं, अगर आपको कोई मसला हो तो फिर आप वहां से देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको सिर्फ चंद एक करा देती हूँ ताकि मैं जो मेजर इसका इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 1 के बाद वो मैं आपको कराना चाहती हूँ, ठीक है। अलिफ लैम मीम, ठीक है। जो बड़े, ये इस तरह मत का साइन जिसे लोग बड़ी मत कहते हैं, हालांकि मत का साइन है खाली, ठीक है, बड़ी और छोटी हमारी मजीद कुरान में है। तो फिर इसको 6 काउंट हमने खींचना है। यहाँ पर ये हरूफ मुक़त्ता, अल हरूफुल मुक़त्तआ, ठीक है, हरूफ मुक़त्तआत जिन्हें हम कहते हैं, तो ये 6 काउंट, और इसमें जो मद बनेगी मद लाजिम हरफी मुसक्कल बनेगी, ठीक है। और लैम के अंदर क्योंकि हर्फ मद्दा के बाद मीम जो है वो मीम में मर्ज हो रहा है, और जो मीम है उसमें मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ बनेगी, ठीक है, क्योंकि मीम अपने बाद किसी लेटर में मर्ज नहीं हो रहा, तो इसलिए हल्का खफीफ है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल ये इसका एक ये बता देते क्योंकि सब रिटन फॉर्म में मौजूद है, और जाहिर है प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है, तो सारे लोग माशाल्लाह जो प्रैक्टिस में साथ करते हैं उन्हें मालूम है, तो आप इसमें जाइएगा, आपको सब मिल जाएगा डिटेल के साथ, ठीक है। अल हुरूफुल मुतहर्रिका अल हरकत, ठीक है, फतहा कसरा दम्मा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हरकत की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये हमें सिमत बताती है कि जो हर्फ है इसकी आवाज़ किस सिमत में जा रही है, ठीक है। फतहा के लिए ऊपर जाती है, कसरा के लिए नीचे जाती है, दम्मा के लिए गोल हो जाती है। तो इसे अदा कैसे करते हैं, इसके हिज्जे कैसे किया जाते हैं, इसे पढ़ा कैसे जाता है? हमजा फतहा हमजा फतहा अ, हमजा कसरा ई, हमजा दम्मा उ, अ, ई, उ। अच्छा, ये आवाज जो है ये मद की आवाज नहीं है, ये हमजा की आवाज है। मद की आवाज जो है आ ई उ है, जो सिर्फ अलजौफ से अदा होती है, ओरल स्पेस से अदा होती है, ओरल कैविटी से अदा होती है, ठीक है। तो ये वो आवाज नहीं है, ये अक़सुल अल हलक से आवाज निकल रही है, आ ई उ, आ ई उ, झटका नहीं देंगे, ठीक है। ही हु,
ع عی عو ح حی حو. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ پڑھ دیا, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. تنوین جو ہے الحروف المنونہ, التنوین فتحتین کسرتین ضمتین, دو فتحتین یا فتحتان کہلاتی ہیں, دو کسرہ کسرتین یا کسرتان کہلاتی ہیں, دو ضمہ جو ہے وہ ضمتین یا ضمتان کہلاتی ہیں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ فتحہ ہے تو آواز جو ہے وہ نون ساکن سے اوپر سے جا کے ملے گی, کسرہ سے نیچے سے جا کے ملتی ہے, اور ضمہ کے لیے گولائی سے جا کے ملتی ہے, لیکن نون گول نہیں ہوگا, اور وہ جو ہے وہ اس پہ انرول کر دیں گے. لیکن موٹے لیٹرز جو ہیں اس میں وہ موٹے خود تو پڑھے جائیں گے, اس پہ جو حرکت ہم جس کے ساتھ وہ پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جو تنوین نون چھپی ہوئی ہے وہ باریک ہی رہے گی, اور نون کا غنہ ناک میں فیل کرنا ضروری ہے. میم فتحتین من, میم کسرتین من, میم ضمتین من, من نن من, بن بن بن. اچھا موٹے لیٹر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ وہ ہے یہ وہ, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ وہ موٹا ہے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ ون ون غین غین. اوپر میں نے اٹھایا ہے اس کو فتح کے لیے جبڑا کھولا, اور نون سے میں نے ملایا فتح کے لیے, فتحتین کے لیے, کسرتین کے لیے, اللہ غی غین. ٹھیک ہے, غی کے لیے نیچے گئی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے, اور لوور جو نیچے ڈراپ ہوا, زبان کا درمیانی حصہ پر ریز ہوا, غی 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 غی. ٹھیک ہے, غی نہیں بولیں گے, غی نہیں بولیں گے, ہونٹ نہیں استعمال ہوں گے, اور واو. ٹھیک ہے, اور اب گولائی دی میں نے ون ون. ٹھیک ہے, ون ون, یہ آواز ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, تو سارے موٹے لیٹر جو اس کی پہلے پریکٹس کیجیے گا, پھر یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس کو ماسٹر کریں آپ لوگ. پیج نمبر 1 اینڈ دس. ٹھیک ہے, پیج نمبر 10. یہ کیا ہے؟ تدریبات علی الحرکات والتنوین. حمزہ فتحہ ا, با فتحہ با, دال فتحتین دن, ابدا, وقفا ابدا, احد احد, اخذ اخذ, اذین اذن. ساکن پہ خوبیاں ساری واضح ہوتی ہیں. جہاں پہ فتحتین ہوتا ہے الف کے ساتھ جب آتا ہے, یا الف کے بغیر نہیں بھی آتا, تو ہمیشہ وہاں مد عوض بنتی ہے. ٹھیک ہے, مد عوض بنتی ہے, یاد رکھیے گا. دو کا الف مدہ بنائیں گے سے ابدا, یہ دو آواز کے دو کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر کھینچے گی, باقی سب ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, احد احد, یعنی صرف فتحتین پر آپ نے یہ مد بنانی ہے. اخذ اخذ اخذ, اذن اذن, امر امر, انا انا, بخل بخل, بررة بررة, جعل جعل, جمع جمع, حسد حسد, حشر حشر, خشي خشي, خلق خلق, خلق خلق, ذكر ذكر, رفع رفع, رقبة رقبة, سرور سرور, سفرة سفرة, سفرة سفرة, سفرتن. اب یہ نون ہے نا, اس کو فیل کریں ایک کاؤنٹ کے لیے جس کی صفت لازمہ ہے. سفرتن سفرہ, نون کا مخرج 1 کاؤنٹ کے لیے ٹچ ہوگا. ٹھیک ہے, صحفن صحفا, صامد صامد. اب دیکھیں صحفن صحفا, ٹھیک ہے, یہ ابدن ابدا. ٹھیک ہے, باقی سب ساکن ہو رہے ہیں جو دو زبر کی یا فتحتین کے علاوہ جو بھی آ رہے ہیں. صامد صامد صامد, طبق طبق, طبقا طبقا, صحفا صحفا, ابدا ابدا. ٹھیک ہے, نوٹ کرتے جائیں. طوًا طوًا, ابدا ابدا, طبقا طبقا, صحفا صحفا, طوًا. یہ یا ہے لیکن یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. مکسورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی. یہ بھی یہ الف کبیرہ اور الف ممدودہ کہلاتی ہے. یہ ممدودہ کا مطلب کھینچنا لمبا, اور مکسورہ کا مطلب چھوٹی کی گئی.
दोनों में प्लेसमेंट का सिर्फ फर्क है, बाकी वही जो अलिफ मद्दा इससे बनता है इससे भी अलिफ मद्दा बनता है, ठीक है ना। तुवन, और ये लफ्ज के आखिर में आती है, ये लफ्ज में कहीं भी आ सकती है अलिफ ममदूद अलिफ कबीरा, ठीक है। आबस, आबस, आदल, आदल, आलाकिन, आलाको, ठीक है। ये हमने तवस्सुत शो किया, ये हमने रखावा शो किया और सफीर भी शो किया हमने, ठीक है। अच्छा आलाकिन, आलाको, ये हमने कलकला शो किया। आमदिन, आमद, या मोटा कलकला था या बारीक था। आइनाबन, आइनाबा, तबकन, तब, तो, तबका, सुहुफन, सुहुफा, तुवा, अबदन, अबदा, नोट करते जाएं, ठीक है। गबरतुन, गबरह, फ़अल, फ़अल, क़तरतुन, क़तरह, रह, रा मोटी है बारीक है, इसके साथ मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। ये ताई मरबूता हा साकिन में बदल जाएगी। कुतिला, और बारीक रहेगी। कुतिला, कुतिल, क़दर, क़दर, कुरिआ, कुरि, और साकिन हमजा साकिन झटके से पढ़ा जाएगा, और दोनों जो मसल्स वी शेप में होते हैं ना, कुरी, यूं सा आके जुड़ जाएंगे। क़समुन, क़सम, कबदिन, कबद, कुतुबुन, कुतुब, ठीक है। अब कुतु सेम रोलिंग से अदा होगी, अपने अपने मखरज पे जाके वहां रोल करेंगे। कुतु, कुतु, ठीक है। और कैफ का मखरज और ता का मखरज, कुतु, कैफ कहाँ पर है और ता कहाँ पर है, वहां हमने रोल करके होंठों को इश्माम में लेकर आने पोजीशन में, रोलिंग पोजीशन में, और फिर हमने क्या करना है, बुन को बाप के मखरज पे उसे पकड़ा और फिर उसे हमने गोल किया, कुतुबुन, कुतुब, और फिर हमने क्या किया, वक़फ़ में इसे साकिन किया तो बारीक कलकला कुतुब, ठीक है। वो हमने इसका शो किया, ठीक है। अच्छा, क्यों कलकला किया जाता है? अरब्स इसलिए करते हैं कि इसमें शिद्दा है, तो जब हम कहते हैं अब, तो आवाज जो है सख्ती से जाके मखरज पे ठहर जाती है, रुक जाती है कुव्वत के साथ। अब इस बा को वाजे करने के लिए हमने कलकला करना होता है, ठीक है। अरब्स कलकला करते हैं ताकि ये वाजे हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? कुतुबुन, कुतुब, कसब, कसब, कफर, कफर, इसमें तकरीर भी है, रा में सबसे ज्यादा सिफात लाज़िमा इसी में तकरीर और इन्हिराफ उसे शो भी करेंगे, और मोटा भी है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि हम इसे साकिन के उससे पहले, वैसे भी ये रवानी में भी मोटा है और वसल वक़फ़ दोनों में, ठीक है। और जब इसे हम कैफा रो, ठीक है, कैफा रो, जब वक़फ़ करेंगे कैफर, इसमें जो खूबियां वाजे हो जाएंगी, ठीक है। कैफार मोटा भी है, मोटाई भी वाजे होगी, डिप बनेगा जबान के दरमियान, और इसकी तकरीर भी वाजे होगी। कुफुवन, कुफुवा, इनाबन, इनाबा, तबक़न, तबक़ा, सुहुफन, सुहुफा, तुवन, तुवा, अबदन, अबदा, ठीक है। कितने सारे आगे आप देखिए मद अवद बन रही है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है रोलिंग में? ये तो पहले हमने सेम रोलिंग से दोनों अदा किए, फिर अनरोल करके बाप पकड़ के रोल किया, तो रोल, अनरोल एंड देन रोल। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले कैफ को कू रोल किया, देन अनरोल करके फा पे गए, और वाव और फा सेम रोलिंग से अदा होगा, उसका ऑपोजिट, ठीक है। कुफुवन, कुफुवा, लुबादन, लुबादा, अगेन अबदन की तरह, ठीक है। लुबादन, लुबादा, लुमज़तिन, लुमज़ह, लहबिन, लहब, मसदिन, मसद, नखीरतन, नखीरह, वजद, वजद। अच्छा, वाव के पर क्योंकि मखरज इसका होंठों की गोलाई से अदा होता है, बीच में पेंसिल के नोक जितना फासला रखेंगे इन्फिताह की वजह से, तो कंप्लीट रोलिंग करेंगे, ठीक है। और वाह नहीं बोलेंगे, वह, वह, ठीक है। वजद, वजद, वसaq, वसaq, वक़ब, वक़ब, वलद, वलद, वहब, वहब, हुमज़तिन, हुमज़ह, हुदन, हुदा, ठीक है। अबदन से शुरू हुआ था, अबदा, एंड हुदन, हुदा, इस पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन ऑलमोस्ट हो गई ये सारी, बाकी इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। और जो जो लेसन बढ़ते जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर रिवीजन का इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कि आप लोग या तो पहले रिवीजन करके बैठे, या मैं जब कराऊं उसके बाद आप यहाँ 10 मिनट बैठ के सारा जो रह गया है सिर्फ उसकी रिवीजन करें, ठीक है। चले, मुझसे, आपसे, हम सब से रब्बुल आलमीन जो है वो कबूल फरमाए,
اور اپنا فضل و کرم کریں ہم پر، آمین، اور ہماری زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں، جو کمیاں ہیں ٹھیک ہے اس کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے اور بہترین مسلمان ہمیں بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، میں دیکھیں میں کو پکڑا نا، مرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم کلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔